हो आवी आवी रे वीर तीर तल हे शणगारी संयमनी में सांझ सवारी रे हे अलगारी मनवानी मैं करी तैयारी रे हे शणगारी संयमनी मैं सांझ सवारी रे अलगारी मनवानी मैं तो करी तैयारी रे मुक्ति ना मार्ग ने जोवा मन थी विचारी रे ओ गुरुवर संगमा आत्म रंगमा आया अब सरिया रे थाब मारे रजो हरण रसिया रे गुरुवर संगमा आत्म रंगमा आया अब सरिया रे थाब मारे रजो हरण रसिया रे प्यारा प्रीतमनी प्रीत ने पामी सैया मावी करे साथ वहली गुरु मानी रानी फिर से छे वीरवाणी संगात हो पोने ओघो जल्दी हाथ उथन गन नाचमा हे निजमा राचवा हे थन गन नाचवा निजमा राचवा ओ मंगाऊ छड़िया रे थाव मारे रजो हरण रसिया रे हे गुरुवर संगमा आत्म रंगमा आया सरिया रे थाव मारे रजो हरण रसिया रे थाव मारे रजो हरण रसिया रे थाव मारे रजो हरण रसिया रे। परम पूज्य आचार्य भगवंत राज प्रतिबोधक पद्म भूषण महान साहित्यकार एवा आचार्य भगवंत रत्न सुंदर श्रीश्वरजी महाराज साहेब टूंक समय में पधारी रह्या छे। चेलणाबेन खरेखर बड़भागी छे। आटला आचार्य भगवंत अने विशाળ श्रमण श्रमणी समुदायनी નિશ્રા આપણને આગળ પ્રાપ્ત થઈ છે। અહીંયા આગળથી એક સરસ મજાનું પદ આપણે લેવું છે। જેના પાવન પગલાથી ધરતી ધબકાર કરે। બહુ સરસ મજાની કવિએ કલ્પના કરી છે કે જો આ ધરતી પણ ધબકતી હોય ને તો આ સંતોના પગલાના સ્પર્શને કારણે ધબકી રહી છે। કારણ કે આપણે બધા તો અર્થ અને કામની અંદર એવા ડૂબેલા છીએ, આપણે વિષય અને વાસનાના વમળમાં એવા ફસાયેલા છે અને એવા જગતની અંદર એકમાત્ર એવા માનવ એવા શ્રમણી વૃંદ એમને વધાવવા માટે એક સરસ મજાનું પદ આપણે સાથે મળીને લઈશું। જેના પાવન હાલો એક દાડી जेना पावन पगला थी धरती धबकार करे ने वीर प्रभु नो वेश धरी संयम शणगार करे। जेना पावन पगला थी धरती धबकार करे ने वीर प्रभु नो वेश धरी संयम शणगार करे। देवो पड़े साधु जीवन नो ओ जय जयकार करे, 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 ओ जय जयकार करे। केवी वचन सिद्धि होय छे आ महापुरुषोनी। हमणा एक महात्मा विहार करीने सौराष्ट्રના એક ગામમાં પહોંચ્યા અને એ વખતે એક શ્રાવકે વાત કરી કે સાહેબ લગભગ 100-125 વર્ષ પહેલા
અહીંયા આચાર્ય ભગવાન કલ્યાણ ચંદ્ર સુરી મહારાજ સાહેબ એમનું આગમન થયું અને પ્રવચનની અંદર મને વાત કરી કે આપણે જૈણા પાડવી જોઈએ. અને એક શ્રાવકે ઊભા થઈને કીધું, સાહેબ અમારો તો ગોળનો ધંધો છે, આખો ગોળ બજાર છે, એની અંદર આખો દિવસ એટલું બધું ચીકણું થાય, એટલો બધો ગોળ ઢળે અને એટલા બધા મંકોડાની વિરાધના થાય છે, અહીંથી અહીં રોજ અમારા પગની નીચે રેંગતા હોય. અને એ વખતે સાહેબે એટલી વાત કરી, હવે કાલથી નહીં થાય. અને આ શબ્દ એમના મોઢામાંથી નીકળ્યો અને એમ કે છે કે 125 વર્ષ પછી પણ સૌરાષ્ટ્રના એક ગામમાં એ ગોળ બજારમાં આજે પણ એક પણ મંકોડો દુકાનમાં થતો નથી, એક પણ મંકોડો. એ સાહેબની વચન સિદ્ધિ, શું સંયમનું બળ હોય છે, શું સંયમની તાકાત હોય છે, શું સંયમની શક્તિ હોય છે કે એમના મુખમાંથી જે નીકળે ને એ આ કુદરતને એને પણ નિયતે પણ ફરવું પડે એવી આ વચન સિદ્ધિની તાકાત જે શ્રમણ શ્રમણી ભગવંતોમાં છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓ તેમને વધાવ્યા. હાલો हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, कि जय जयकार करे. भिक्षा लईने अणगारा, अणगारा रे अणगारा. भिक्षा लईने अणगारा, अणगारा रे अणगारा. भिक्षा માટે ઘર ઘરમાં ફરનારા રે ફરનારા. મળશે તો સંયમ વૃદ્ધિ, મળશે તો સંયમ વૃદ્ધિ, ના મળશે તો માને તપની વૃદ્ધિ. એ રાગ વિના ને દ્વેષ વિના સૌનો સ્વીકાર કરે, એ રાગ વિના ને દ્વેષ વિના સૌનો સ્વીકાર કરે. દેવો પણ સારું જીવનનો જય જય, कि जय जयकार करे, कि जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जय जयकार करे. આચાર્ય ભગવાન રત્નસુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબનું હમણાં એક પુસ્તક વાંચ્યું, બહુ સરસ મજાની વાત એમણે કરી છે કે જ્યારે પાણી સ્વરૂપ એનું એક જ હોય છે પણ અલગ અલગ નામે તે ઓળખાય છે. જ્યારે પાણી આકાશમાંથી પડે ને વાદળમાંથી ત્યારે એને વરસાદ કહેવાય. એ જ પાણી જ્યારે પર્વત પરથી વહે ને ત્યારે એને ઝરણું કહેવાય. જ્યારે બે મર્યાદિત કાંઠાની વચ્ચે વહેતું હોય ને ત્યારે એને નદી કહેવાય. કોઈ બંધિયાર જગ્યાની અંદર એક ગંધાઈને પડ્યું હોય તો એને ખાબોચિયું કહેવાય. એ જ પાણી જ્યારે પરમાત્માના મસ્તક પરથી પડે ને ત્યારે એને પક્ષાલ કહેવાય. અને એ જ આંસુ જો આંખમાંથી નીકળે એ જ પાણી તો એને આંસુ કહેવાય. પાણી એ જ છે પણ જેવા સ્વરૂપે હોય એ રીતે તે ઓળખાય છે. એવી જ રીતે શ્રમણ ભગવંત જ્યારે અવિરત શ્રમ કરતા હોય છે ને ત્યારે તે શ્રમણ તરીકે ઓળખાય છે. પ્રતિકૂળ ગમે તેવી ઋતુ હોય એની અંદર પણ તેઓ સ્વસ્થ અને મસ્ત રહેતા હોય છે. એટલા માટે તે ઋષિ કહેવાય છે. આ કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર પોતાની યતનાઓને જાળવતા હોય છે એટલા માટે તે યતિ કહેવાય છે. અને કોઈ પણ અવસ્થાની અંદર એની અંદર તેઓ શાંત રહેતા હોય છે એટલા માટે તેઓ સંત કહેવાય છે. અને એવા રાષ્ટ્ર સંત, રાજ પ્રતિબોધક, પદ્મભૂષણ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન રત્નસુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ બતાવી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી आई है सवारी मेरे गुरु राज की, आई है सवारी मेरे सूर्य राज की, आई है सवारी मेरे गुरु राज की, आई है सवारी मेरे सूर्य राज की. खुशबू फूलों की यहाँ रुक गई है, शाखाएं तरु की यहाँ झुक गई है. खुशबू फूलों की यहाँ रुक गई है, शाखाएं तरु की यहाँ झुक गई है. आई है सवारी मेरे गुरु राज की, आई है सवारी मेरे सूर्य राज की, आई है सवारी मेरे गुरु राज की, आई है सवारी मेरे सूर्य राज की. हो संग गुरुवर का, पान अमृत का,
संग गुरुवर का पान अमृत का, रंग संवेग रंग मोक्ष मंजिल का, रंग संवेग रंग मोक्ष मंजिल का। नैया अब मेरी भव पार भई है, नैया अब मेरी भव पार भई है। आई है सवारी मेरे गुरु राज की, आई है सवारी मेरे गुरु राज की, आई है सवारी मेरे सूर्य राज की। सामूहिक गुरुवंदन। इच्छा में क्षमा समणो, इच्छा में जन किंच्यापत्यम परपत्यम बत्ते छामी क्षमा समणो वंदियुम जावणित जाय निसीये छा कारण બધા કુલર ત્યાં જઈને બંધ કરી. નમો રિયંદાણુ નમો સિદ્ધાણુ નમો હરિયાણુ નમો ઉપજ્જાયાણુ નમો લોહે સંબધાઉણુ એસો બંજન મુકારો નમ ભાવપણાસણો મંગલાનંદ સંભેસિમ પડમો हवै मंगलम। नमो दुर्वार रागादिमैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भयमो। जय जुआणम बमो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमं सिया पौमा वै पमुवनिसेमियापाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपाद जगनाहो। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब बाबा ले लीजिए। चलो जगी जाहिरात पहला जे करूँ पहला भाई व्याख्यान मित्र જે બધું પહેલા કેમ નજીક નહીં चेलना बेननो उसका एक चढ़ावा है कल के लिए चरवड़ो कटाशणो અને મુપત્તિ। ચેલણાબેન એમના સંયમ જીવનની વિધિનો પ્રારંભ એ કટાસણા ચરવડા અને મુપત્તિ સાથે કરશે અને જ્યારે તેઓ રજોહરણ ગ્રહણ કરવા માટે જશે એની પૂર્વે એ ત્રણે ત્રણ ઉપકરણ જે પરિવારે આ લાભ લીધો હશે એમને અર્પણ કરવામાં આવશે અને ઘરે એ વાપરી પણ શકશે અને એના દર્શન કરવા માટે રાખી પણ શકશે।
तीनों का साथ में एक ही चढ़ावा है, चरवड़ो, कटासना और मुपत्ती चेलना बहन को अर्पण करने का और उसके बाद उनके हाथ से ग्रहण करके अपने घर में स्थापित करने का ये चढ़ावा है। वो चढ़ावा रुपये में बोला जाएगा और साधारण में उनके राशि लेके जाएंगे 11,111 रुपया, 1,08,000 रुपया, 1,08,000 रुपया, 1,08,000 रुपया, 1,08,000 रुपया, 1,51,000 रुपया, 1,51,000 रुपया, 1,51,000 रुपया, 1,51,000 रुपया एक बार, 1,51,000 रुपया बे बार। हमारे बनवो अणगार, मारे बनवो अणगार, मारे करवो संसार, मारे बनवो अणगार। 1,51,000 रुपया, 1,51,000 रुपया, 1,51,000 रुपया एक बार, 1,51,000 रुपया बे बार, 1,51,000 रुपया बे बार, 1,61,000 रुपया, 1,61,000 रुपया। परम पूज्य आचार्य भगवंत पद्म सुंदर સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ એમનો આજે 51મો દીક્ષા દિવસ છે। સંયમ જીવનના 51 વર્ષ આજે એમનો પ્રવેશ 51મા વર્ષમાં પ્રવેશ થવા જઈ રહ્યો છે। એમના સંસારી પરિવારજનો તરફથી આજે 20 રૂપિયાનું સંપૂજન રાખેલું છે અને જિનાલયમાં રૂપિયા 10,000 પરમાત્માની અંગરચના માટે એમના તરફથી અર્પણ કરવામાં આવ્યા છે એ પરિવારની અને આ મહાત્માના સંયમ જીવનના 51 વર્ષની અનુમોદનામાં આપણે જોરદાર તાળીઓથી આપણે અભિવાદન કરીશું। ₹1,61,000 रुपया एक बार, 1,61,000 रुपया बे बार, 1,75,000 रुपया, 1,00,000 ने समय ओछो है साहेब नु प्रवचन આપણે શરૂ કરવું છે। 1,75,000 એક વાર, 1,75,000 બે વાર, 1,75,000 બે વાર, 1,81,000 रुपया, 2,07,000 रुपया, 2,11,000 रुपया, 2,25,000 रुपया, 2,25,000 एक बार, 2,25,000 बे बार, 2,25,000 बे बार, 2,25,000, 2,31,000, 2,31,000, 2,51,000, 2,51,000 रुपया, 2,51,000 रुपया, 2,51,000, 2,51,000, 2,51,000, 2,61,000। પરિવારમાં કેટલા વર્ષ પછી દીક્ષા આવી છે ભાઈ મનુભાઈ? 5 પેઢી પછી। ઓહો, એટલે 5 પેઢીનો આગળનો આપણને ખ્યાલ નથી કે આપણે 5 પેઢી બોલીએ છીએ કે આપણે એમ ગુજરાતીમાં કે છેલ્લી 7 પેઢીમાં મેં જોઈ નથી આવો દીક્ષાનો પ્રસંગ। આ દીકરી આ દ્વારે લઈને આવી છે। કોઈ બહુ કિલ્લાનો દરવાજો હોય ને મજબૂત બંધ હોય વર્ષોથી તો એને ખોલવા માટે હાથી લાવવા પડે, મોટા મોટા લાકડા લાવવા પડે, એને તોડવા માટે હથોડા લાવવા પડે, ત્યારે દરવાજો ખુલે। આ દીકરીએ બહુ સંઘર્ષ કરીને આખા પરિવાર માટે દરવાજો ખોલી દીધો છે। હવે બીજાને જ્યારે અંદર પ્રવેશ કરવો હશે ને ત્યારે સંઘર્ષ નહીં કરવો પડે એવી આ દીકરી સંયમ માર્ગનો આ રાજમહેલની અંદર પ્રવેશ જ્યારે કરી રહી હોય એને ચરડો કટાસો ને મુપત્તિ અર્પણ કરવા માટે આ સરસ મજાનો લાભ 2,61,000 રૂપિયા, 2,61,000, 3,6 કરો હવે શું આમ 3,06,000 રૂપિયા। ₹3,06,000 एक बार, 3,06,000 बे बार, 3,06,000 रुपया, 3,11,000 रुपया, 3,11,000 रुपया। જેને ફટાફટ 3,11,000, 3,11,000 એક વાર, 3,11,000 બે વાર, 3,11,000 બે વાર, 3,11,000 બે વાર, 3,11,000 બે વાર, 3,21,000 रुपया, 3,21,000 एक बार, 3,21,000 બે વાર, 3,21,000 બે વાર, 3,21,000 બે વાર, 3,51,000 रुपया। ₹3,51,000 एक बार, 3,51,000 बे बार, 3,51,000 बे बार, 3,51,000 रुपया 3 बार। बोलो श्री धर्मनाथ भगवान की जय।
શાહ અમૃતલાલજી, રીખવદાસજી, ચેન્નાઈ પરિવાર, વેલંદર, બેલંદર, તેલંદર, ઓકે, એમના ચેન્નાઈના એમના પરિવારજનો તરફથી આ સરસ મજાનો લાભ લીધેલો છે અને આ રૂપિયા શ્રી જવાહરનગર જૈન સંઘમાં સાધારણ ખાતામાં અર્પણ થશે એની ખાસ નોંધ લેવા માટે વિનંતી. આજે અંતિમ વાયણું ચેલણાબેનનું 4 વાગે છે અને સાંજે 7 વાગે કુમારપાળ મહારાજાની આરતી છે. આવતીકાલે બરાબર સવારે 7 કલાકે આપણે આ મંડપની અંદર પ્રવેશ કરશું અને ચેલણાબેનની પ્રવર્જા વિધિનો પ્રારંભ થશે. આવતીકાલનો નવકાશીનો લાભ પરિવાર તરફથી, સંઘવી પરિવાર તરફથી છે. તો બરાબર 8 કલાકે આવતીકાલે સવારે 8 વાગ્યાથી ત્યાં આગળ આપણું રસોડું પણ ત્યાં આગળ ચાલુ થઈ જશે. હા, પરિવારજનો જેમણે ચરણો કકાસુમ ઉપત્તિ અર્પણ કરવાની છે 7 વાગે બરાબર શાર્પ આપવા માટે નમ્ર વિનંતી છે. પૂજ્યશ્રીનું પ્રવચન અત્યારે ચાલુ થઈ રહ્યું છે અને ખૂબ શાંતિથી આપણે કોઈ વિક્ષેપ ન પડે એ રીતે આ જીનવાણી શ્રવણની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ. પ્રવચન પછી બેઠું વરસીદાન અહીંયા આગળથી શરૂ થશે. ચેલણાબેન ત્યાં બરાબર ગેટ ઉપર બેસશે. ભાઈઓ અને બહેનોની લાઈન સરસ રીતે મેનેજ કરવામાં આવશે અને ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થાય એની કાળજી લેવામાં આવશે. તો જેવું પ્રવચન પૂર્ણ થાય એટલે ચેલણાબેનના હાથે આપણે બધા વરસીદાન લઈને ઘરે જઈશું. અત્યારના બધા મોબાઈલ સાયલેન્ટ મોડ ઉપર અથવા સ્વિચ ઓફ કરી દેવા માટે નમ્ર વિનંતી છે. ખાસ ટકોર છે, બહેનો જેમને ન આવડતું હોય એ બાજુવાળાની મદદ લઈને પણ ફોન અત્યારે સ્વિચ ઓફ કરાવી દે. एक ही घर में 2 पिंजर में तोते बंद थे. एक पिंजर बहुत छोटा था, अंदर कोई सुविधा नहीं थी, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, और इनकी आंख में से आंसू जा रहे थे. आपके सामने ही एक पिंजर था, गोल्डन का बना हुआ. अमृत था, पानी था, लाल मिर्ची थी. बहुत बड़ा पिंजर होने के बावजूद भी वो रो रहा था. शायद मुझे और आपको एक प्रश्न उठ सकता है, पहले पिंजर वाला तोता रो रहा था, समझ में आता है, असुविधा थी, असुरक्षा भी थी. दूसरा पिंजर पूछा दूसरे पिंजर वाले तोते को रोने का कारण क्या है, और उसने बता दिया. पहले वाले तोते को पूछो वो क्यों रो रहा है. तब उसने बता दिया मेरे पास दुख सिवाय कुछ नहीं है. मैं इनकी ओर देखता हूं और इसलिए रो रहा हूं कि इनकी कितनी अच्छी सुविधा मिलती है. अब दूसरे तोते को पूछा तू क्यों रो रहा है. उसने बोला मुझे आसमान दिख रहा है. मान लिया हर तरह की सुविधा है, मगर आसमान कहाँ है. चारित्र के मार्ग पे जाने वाले को देख करके आपके मन में एक भाव होता होगा, होता है कि नहीं मालूम नहीं. दीक्षा क्यों. गोरे का माना नहीं, इस मंडप में कितनी दीक्षा देखी होगी. बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप मुझे बताओ आपके हृदय का जवाब, चारित्र जीवन लेने की जरूरत क्या थी. पहले बंद पिंजर में तोते को जो समझ में आता है दुख बहुत था, मगर दूसरा तोता उसने देखा कि आसमान में उड़ने की स्वतंत्रता मेरे पास नहीं है. एक प्रवचन में, चालू प्रवचन में आपको प्रश्न पूछूं, दुख में से सुख में जाना है, कोई विरोध नहीं है.
सुख मिल गया फिर धर्म करना है कि पाप करना है। एक महीने से तेजी के माहौल में बाजार में जाना बंद था क्योंकि तबीयत बहुत बेकार थी। और एक महीना साधु भी बीमार था, शायद गोचरी भी बंद जैसी थी, स्वाध्याय भी बंद था। एक महीने के बुखार के बाद साधु भी अच्छा होना चाहता है, दवाई लेता है। और एक महीने की बीमारी के बाद आप भी दवाई लेकर के अच्छे होते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, एक महीनो બજારમાં જવાનું બંધ થયું એની વેદના વધારે કે દેરાસર જવાનું બંધ થયું એની વેદના વધારે? आप बताओ पीड़ा क्या? अरे यदि एक महीने के बाद स्वास्थ्य अच्छा होता है, बाजार में जाने का आनंद बढ़ेगा कि मंदिर में जाने का आनंद बढ़ेगा? आपसे जवाब चाहिए। दुख में से सुख में जाने का मन हो, विरोध नहीं। सुख मिलने के बाद पाप करना है कि धर्म करना है? जवाब आपसे फिर 5 बात करना चाहता हूं आज। बोलो। हाँ, 15 साल से रुका हुआ पेमेंट, 15 साल से रुका हुआ पेमेंट यदि एक्सीडेंटली आ जाए, दान करना की एफडी करनी है? हाँ? क्या? जल्दी जवाब दीजिए, बस इसलिए आता नहीं है पेमेंट। पांच महाव्रत की बात आपको मालूम होगी शायद। हमारे जीवन की 5 सबसे बड़ी ताकत, इनकी बात आज प्रवचन में करना चाहता हूं। नंबर 1, अटैचमेंट। चारित्र जिनमें प्रवेश करने वाले मुमुक्षु कल आप यदि दीक्षा देखेंगे, आपको मालूम होगा हर चीज समाप्त होने के बाद वो दीक्षार्थी मुमुक्षु बहन आदेश मांगेंगे, गुरुदेव मेरा नाम डिक्लेयर करो। इचकारी भुगन पसाई करी मम नाम ठवणम करे हो, मेरा नाम बताओ। और गुरुदेव इनका नाम नहीं बताएंगे। नंबर 2 पे इनका नाम बताएंगे, पहले ये बताएंगे तेरे गुरु कौन है। नाम में मेरा मांग रहा हूं और बता देगी तेरे गुरुदेव ये रहेंगे, फिर तेरा नाम। हमारा अटैचमेंट कल से चेंज हो जाएगा। संसार का अटैचमेंट कट ऑफ होने के बाद देव गुरु और धर्म के प्रति अटैचमेंट क्लाइमैक्स में चला जाएगा। सत्य ने अटैचमेंट का आउटपुट किया। आपको मैं बोलते करूंगा, मेरा गुरुदेव के साथ अटैचमेंट डिक्लेयर होने के बाद आउटपुट क्या? सचमुच मेरा अटैचमेंट गुरुदेव के साथ अभी कंप्लीटली छूट चुका है, जबरदस्त बॉन्डिंग बन चुकी है। पता कैसे चलेगा? एंकर से ना तू तो नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अटैचमेंट? हाँ, क्या समर्पण भाव माने? क्या क्या वो तो समझ में आ गया, मगर इंप्लीमेंट करने की बात आएगी तब क्या, कैसे पता चलेगा? गुरुदेव सब कुछ सौंप दिया है आपको मैंने। अध्यात्म जगत का अटैचमेंट का एक श्रेष्ठ कोटि का आउटपुट है सहन शक्ति।
शक्ति देने का काम पुण्य कर सकता है, संत शक्ति देने का काम प्रेम करता है। सारी दुनिया शक्ति के पीछे पागल है, पुण्य इतना जबरदस्त है। यहाँ चारित्र जिन में प्रवेश करने के बाद सबसे पहली कंडीशन है सहन शक्ति आपकी कितनी जबरदस्त। गुरुदेव आपके चरण में जीवन दे दिया है, मेरे जीवन को जैसे भी बनाना है आपको मैंने सौंप दिया, जो ठीक लगे वो। તમે બધા દીક્ષા પ્રૂફ થઈ ગયા જોઈ જોઈને। કેટલામી દીક્ષા જોઈ? સત્યના લગભગ હે આ ગ્રાઉન્ડમાં 50 ને હજી તને કાંઈ અસર નથી। हाँ? अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ 15 साल से जिनको सिगरेट का व्यसन हो और इनकी तुम्हारी दोस्ती हो और 15 साल के बाद भी तुम्हें सिगरेट का व्यसन न लगे तो मानना पड़े छाती लेके बैठा है। एक ही जगह 50-50 दीक्षा देखने का सद्भाग्य मिला। क्या देखा तुमने? 1 घंटे के लिए मोबाइल नहीं छूटा, पूरी जिंदगी संयम मरते। आज आपको एक गंभीरता से बात करना चाहता हूं। चारित्र जीवन अंगीकार करो या न करो आपकी मर्जी की बात, मगर अध्यात्म के क्षेत्र में यदि किसी से भी तुम्हारा अटैचमेंट है, एक बात पहले बता देना, आई लव गुरुदेव नहीं, आई लव पेन। पीड़ा को प्रेम किए बिना न परमात्मा को प्रेम कर पाएंगे, न गुरु भगवान को प्रेम कर पाएंगे, न सामायिक को प्रेम कर पाएंगे, न प्रतिक्रमण को प्रेम कर पाएंगे, न आंबिल एकासना और बेचना को प्रेम कर पाएंगे। दानशील तप और भाव, किसी को भी प्रेम करना है, पीड़ा को प्रेम करो, फिर आगे की बात करो। सच बोलो, आप बता पाएंगे गुरुदेव वी लव पेन? हाँ बोलो कि ना बोलो? गुरुदेव की बात मत करना, गुरुदेव वी लव यू नहीं, पहले बोलो कि वी लव पेन। हाँ नहीं, क्यों नहीं? नहीं, मैं जानना चाहता हूं। एक पत्थर जब शिल्पी के हाथ में आता है तब पत्थर को तो बोलने के लिए तैयार करो और उनको बोलो, बोल शिल्पी के हाथ में आने के बाद तुझे बहुत आनंद दोगे। क्यों? आई लव पेन। जब शिल्पी के हाथ में पत्थर आता है सबसे पहले तो पेन, पीड़ा देता है, प्रतिमा बाद में होती है। कारपेंटर के हाथ में लकड़ा आता है सबसे पहले पेन, फिर सोफा सेट बनता है। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको पीड़ा दिख रही कि पीड़ा के पीछे पुरस्कार दिख रहा है? हम सब चारित्र के मार्ग पे आने के बाद वो ही मुनि टिक पाएगा जो पेन को प्रेम कर सकता है, वो ही दावा के साथ। लोच में भी पेन है, नंगे पैर विहार में भी पेन है, गोचरी में भी पेन, बिना स्नान जिंदगी भर चलाना वो पेन। दीक्षा के पहले मेरे गुरुदेव ने मेरी वैराग्य की कसौटी नहीं की, पीड़ा की कसौटी की। झेल पाएगा पीड़ा? 2,000 किलोमीटर गुरुदेव ने हम सबको चलाया करीबन करीबन, फिर दीक्षा दी है। सच बोलो, हमारा जीवन अच्छा? सत्यन, ये जीवन बहुत अच्छा? सच हाँ कि ना? यदि तुम नहीं लेते हो, हमारे जीवन में आपको कष्ट दिखाई पड़ता है या प्रसन्नता दिखाई पड़ती है? आप मुझे बता दो, हमारे जीवन में कष्ट बहुत है कि प्रसन्नता बहुत है? हैप्पीनेस बहुत की डिफिकल्टी बहुत? तो कब की ले ली होती?
मैं रिपीट करना चाहता हूं, दीक्षा के बाद भी जिस मुनि जिंदगी भर तक पेन को प्रेम नहीं करेगा, उनका दीक्षा जीवन में टिकना भी मुश्किल है। हर पेन के पीछे पुरस्कार जबरदस्त मिलेगा, मगर सबसे पहले तो पेन ही मिलेगा। एक परमात्मा की प्रतिमा को प्रतिष्ठा करने के 5-5 करोड़ की बोली लगती है। 2 मिनट का काम सीमेंट लगा दिया, होगी प्रतिष्ठा 5 करोड़ किसको बोलते हैं? मगर वो पत्थर वहां तक क्यों पहुंचा? पेन से गुजरा है। कारवी जबरदस्ती चोट मारी थी, फिर भी टिक गया। जो पत्थर टूट गया वो गया काम से, जो पत्थर टिक गया न्याल हो गया। सत्य मेरी ओर से पीड़ा आ जाए, मेरे प्रति प्रेम टिका रहेगा। एक छोटा सा प्रश्न पूछने के बाद आगे चलूं। ये वास्तव में ना वास्के आप डलवाने के लिए आओ और मैं ना बोल देता हूं, नहीं डालना है। मेरे प्रति प्रेम बना रहेगा। हाँ? नहीं, क्यों? क्या है? क्या होता है? क्यों मंग नहीं डालने का मन नहीं था? हाँ? मेरा काम है, तुम्हारा थोड़ा सुनने का काम है। डलवाना था तो मेरा काम, मैंने नहीं डाला। क्या तुम्हारी 1 मिनट में कसौटी हो जाती है? गुरुदेव के प्रति प्रेम, ये बंधन, ये खमासना, इचकारी, भगवान पसाईगिरी, मायना बधाई, ये सब कुछ करने वाले एक वाक्य नहीं डाला, प्रेम गया तुम्हारा। यह सौदाबाजी। कपड़े निकाल करके गुरुदेव ने डंडा से मुझे मारा है, फिर भी प्रेम क्लाइमेक्स पे गया है। एक छोटी सी कसौटी में तुम फेल हो गए, सिर्फ बास्केट नहीं डाला इसके हिसाब से। एक बात बताना चाहता हूं, बिना अच्छा पेट भी तुम दूध पाक पी सकते हो, पचा नहीं पाएंगे। दूध पाक पीने के लिए पेट अच्छा नहीं चाहिए, दूध पाक पचाने के लिए पेट अच्छा चाहिए। नालायक आदमी भी धर्म कर सकता है, मगर धर्मी बन नहीं पाता है वो। नहीं, नेवर। मंदिर में भी जा पाएगा, गुरुदेव के पास जी जाएगा, शायद चारित्र जीवन भी ले पाएगा, मगर ये मुनि जीवन की मस्ती पाने के लिए कंपल्सरी पेन है, नॉट वॉलंटरी। आपके मन में कोई भी डाउट है तो खत्म कर देना। अकेला पेन नहीं है, पेन के पीछे पुरस्कार है। सामने से होकर के चारित्र के मार्ग पे हम निकल गए, और इतने दिनों के बाद आप पूछो कि गुरुदेव मस्ती क्या है? वी कांट एक्सप्लेन यू। हमारी अनुभूति निश्चित है, मगर अभिव्यक्ति में हम कमजोर पड़ जाते हैं। मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, अटैचमेंट का अर्थ है सहन शक्ति। गुरुदेव अब आपके चरण में आपकी ओर से कोई भी पीड़ा आएगी, विथ हैप्पीनेस आई विल रेडी टू बेयर इट। ये है समर्पण भाव का अर्थ। सारी दुनिया में मैंने प्रतिकार किया होगा, मगर गुरुदेव आपकी ओर से आने वाले कोई कष्ट का प्रतिकार अब कभी नहीं, नेवर। जीरण सेठ का नाम तो पता है ना? क्या किया था? महावीर भगवान को वो विनंती की थी, पालना की। 4 महीने तक विनंती करने वाले जीरण सेठ की प्रार्थना महावीर भगवान ने न सुन के दूसरे के घर गए थे। सच बोलो, जीरण सेठ को क्या लगा? महावीर के प्रति दुर्भाव हुआ?
हाँ क्या हुआ? नहीं बोलो। हाँ શું થયું? उनको लगा ना कि मेरा पुण्य कम पड़ गया, यही लगा ना। तो यदि मैंने आपको बास्केट नहीं डाला तब आपको क्या लगता है? मेरा पुण्य कम पड़ गया वो लगता है कि गुरुदेव ने क्यों नहीं डाला वो लगता है। અને એમાં પણ જો તમને છોડીને કોકને બોલાવીને બાસ્કેટ નાખ્યો હોય, વરઘોડા ઉતરી જાય મારે। બહાર જઈને જાત જાતની કોમેન્ટ કરો કે ગુરુદેવ પૈસાવાળાને હાચવે, આપણો ભાવ ન બુજે, તમારો કોઈ ભરોસો નહીં। क्या है? શું ન કરાય? કેમ ન બને એવું? ચાલુ દર્દીને ડોક્ટર જલ્દી ના દે, ઓપરેશન વાળા જલ્દી બોલાવે, આવી जा આગળ। मैं ये नहीं कहता, मैं तो तुम्हारी गुरु के प्रति प्रेम की कसौटी करता हूं। एक वास्केप में डालो और प्लस माइनस हो जाता है, वहीं रहो तुम। एक बात कही दूं, जेने बाते बाते ओछू लागे ने बाते बाते खोटू लागे ए धर्म में टकी न सके। जेने बाते बाते ओछू लागे ने बाते बाते खोटू लगे ए यहाँ आवी जाए, टकी नहीं सके। कल ये बेंच चारित्र के मार भेजेंगे, अटैचमेंट डिक्लेयर हो जाएगा, आपके गुरु का नाम ये, बस शांत शक्ति के लिए आई एम रेडी फॉर दैट। नंबर 1 अटैचमेंट, सेकंड नंबर एटमॉस्फियर। कल से एक पवित्र वातावरण जिंदगी भर तक मिलेगा साध्वी जी को। उपासना का माहौल, संयमी का ग्रुप, चाहे प्रतिगमन, चाहे परिलीन, चाहे स्वाध्याय, चाहे यत्ना, चाहे गुजरी, चाहे पानी, गुड एटमॉस्फियर। संयम जीवन में आपको लगता है कि क्या मिलता है, वो 5 बात आपको करना चाहते हैं, वो 5 महाव्रत तो है ही। सच बोलो, घर पे सामयिक करो और उपासना में सामयिक करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, क्या फर्क क्या पड़ गया? एक एटमॉस्फियर मिलता है। कार्तक वध बीच के दिन पालिताना की यात्रा पे जाओ, वही पालिताना, वही शैली, वही तुम, वही ऋषभदेव भगवान, मगर दूज के दिन तुम जाएंगे वो माहौल नहीं बनता है, मगर पूनम के दिन जाएंगे एक माहौल जबरदस्त बन जाता है। क्या ताकत है? गुड एटमॉस्फियर। पालिताना का एटमॉस्फियर पागल बना देता है, तो ये पूरी जिंदगी भर तक गुड एटमॉस्फियर के बीच में रहना है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, धर्म करने के लिए दीक्षा नहीं है, पाप त्याग के लिए दीक्षा है। कल ये प्रतिज्ञा होगी ना, श्रावक जीवन का हर धर्म, संयम जीवन का हर धर्म का पालन में करूंगा, वो प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा वो होगी, जिंदगी भर के लिए एक भी पाप नहीं करूंगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं, कई लोग जिनको अक्ल नहीं है, कम अक्ल है, वो कभी कभी दीक्षा। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, फिर आगे चलूं। मेरी दीक्षा जब हुई तब मैंने ठान ली होती कि आप सम्मति देंगे तो ही मैं दीक्षा लूंगा, तो आपने मेरे लिए ओपिनियन क्या दिया होता? समझाव्યું कि नहीं समझाव्યું? नहीं समझाव्યું। मारी दीक्षा होते तने मैं नक्की राख्यो कि तू रजा आपे तो दीक्षा होते, शू कीधुं होत? बोलो हैं? हाँ पढ़ियो कि ना पढ़ियो? ना ना जो मारे लेवी थी पर नहीं, जरूर से दीक्षा नहीं। शायद इस बहन को भी
माहौल में जाना पड़ा होगा। आज तुम्हारी एक ही दलील है, संसार में धर्म नहीं तो संसार में धर्म कदाच थी सके। पाप त्याग 100% था, नॉट 99, 100% पाप त्याग हो ही नहीं सकता। इनके लिए चारित्र जीवन है। सर्व पापनो त्याग ग्रस्त जीवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुनि जीवन ने ताकत है पाप त्याग। पौषध में समूह पचकान पाप त्याग। सामायिक में जो सामायिक पौषध અને ચારિત્ર ત્રણેયમાં પચકાણ પાપ त्याग, ધર્મનું નહીં। गुड एटमॉस्फेयर मिलेगा और अपने आप से एक ताकत बन पाएगी। वर्षों पहले हम बिहार करके अमलनगर से आ रहे थे बंबई। ये थाना के बाजू में कालेर है ना, कालेर, वो टाइम उपासना नहीं था, स्कूल थी। करीबन मुझे मालूम है तब तक पूरे दिन में 28-30 किलोमीटर का बिहार हुआ था। शाम को आए, अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन भानु सिंह महाराज आपकी निश्रा में थे हम। बड़ी मुश्किल से लास्ट 2 किलोमीटर हमने काटे और उपासना में स्कूल में आए, कपड़े उतारे, दूरी पे डाले और प्रतिक्रमण शुरू होने की बात थी। तब एक केवल था। अब गुरुदेव ने आकर के सब साधु को प्रतिक्रमण के पहले इतना ही कहा कि आज बहुत लंबा विहार था, यदि थके हो तो बैठे बैठे मजे से प्रतिक्रमण करना। गुरुदेव ऐसी छूट देते नहीं थे, मगर इतना कड़ा विहार होने के हिसाब से गुरुदेव ने बोला कि जेने पण बैठा बैठा प्रतिक्रमण करवू होय करजो। अमने बधाने तो हाश आज परमिशन मળી અને ગુરુદેવે ઉભા ઉભા શરૂ કર્યું। क्या चाहिए हैं? શું કહ્યું? પાકું એમ? તમારા ઘરમાં સાસુ શાક સુધારતા હોય ત્યારે વહુ ટીવી ન જ જુએ, પાકું? બંને સાથે કરે। सभी को बोलते गुरुदेव की बैठे बैठे प्रतिमा। गुरुदेव खुद खड़े हो गए। एक साधु नहीं ऐसा था कि जो खड़ा नहीं हुआ। गुड एटमॉस्फेयर। क्या गुरुदेव टिकाते, क्या मुनियों टिकाते। कभी स्वाध्याय का मन होता तब का नहीं, आजू बाजू वाले करते, चलो हम भी तो करें। आपके वहां ना अटैचमेंट है ना एटमॉस्फेयर है, नहीं है। नंबर 3, गुड एंगल। चाहे दिक्कत आ जाती है, बहुत कुछ अपने मन की बात नहीं होती है, मगर गुड एंगल लेकर के बेटा डायवर्जन ले लेता है, अच्छा है। अटैचमेंट से सहन शक्ति मिलती है, एटमॉस्फेयर से साधना करने की ताकत मिलती है और एंगल से समाधि टिक जाती है। અમારો શબ્દ તમે સાંભળ્યો છે, ગોચરી મળે તો હે ઓહો, એ બાબતમાં તો કેવું પડે ગોરેગામ। અમારા સ્લોગન તમને મોઢે, ગોચરી મળે તો અને ન મળે તો, પેમેન્ટ મળે તો હે મળવું જ જોઈએ ને, ન મળે તો હે गुड एंगल। आज बात निकली तो आपको बताना चाहता हूं, साधना में अपवाद बहुत है, समाधि में कोई अपवाद नहीं। साधना में यथाशक्ति शब्द लिखा है, समाधि में कोई यथाशक्ति नहीं, कंपल्सरी। मांस खमन नहीं होता है, छोड़ दे। नौकाश भी नहीं होती, छोड़ दे। मगर बोलो कि समाधि नहीं टिकती है, दुर्गति हो सकती। ये ताकत मुनि जी में लानी ही पड़ती। किसी भी मुनि का नहीं, गुरु भगवान का भी
जो चाहते हो तो सबको तो होता नहीं है ना। एक गुड एंगल के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2-3 चीज आप भी एक बार एक दिन के लिए प्रयोग कर सकते हो। चाहे आपके मन के मुताबिक कुछ भी न हो, मगर आप बोलो कि गुड एंगल के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज नेचर करके ही रहूंगा सिर्फ ओनली फॉर 1 डे। सच बोलो, एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहता हूँ। गाड़ी लेके जाते हो, आपकी गाड़ी में बाद पीछे की सीट पे आपका मित्र बैठा है, फास्ट फ्रेंड, और साइड मांगते हो मगर साइड नहीं मिलती है, जानबूझ के वो साइड नहीं देता है। सच बोलो, समाधि बनी रहती है। हाँ? सुनियो, सच बोलो, मगर क्यों नहीं दिया वो आपके। मैं कभी कभी ये पूछता हूँ आपको कि आपके मन में ये भाव होता है वो साइड क्यों नहीं देता है, आपका राइट क्या है। गाड़ी आपकी, गाड़ी इनकी, रोड कॉमन, साइड देना देना इनकी मर्जी की बात, गर्म क्यों हो जाते हो। चलो इतना तो बता दो। एंगल की बात करना चाहता हूं। भगवान महावीर को 175 દિવસ રોટલીની બોણી નથી થઈ, રોટલી 175। ભગવાન ઋષભદેવને 400 દિવસ સુધી કોચરીની બોણી નથી થઈ, मगर आचार्य सूत्र में भगवान का साधना जीवन का वर्णनिका में लिखा था, जिस भाव से भगवान गोचरी जाते रहे उसी भाव से भगवान वापिस आते थे। इतनी छोटी चीज में यदि समाधि हमारी टिकती नहीं है, हम गलत फहमी कर देते, गालागाली कर दे, क्रोध कर देते, फॉर व्हाट। मौत के टाइम समाधि कैसी बनी रहेगी। जय विराय सूत्र में समाधि का मरण मांगा है, साधना का जीवन नहीं मांगा है। भगवान समाहि मरणम च बोहिलाभो। इस सभा में बैठने वाले यंग जनरेशन को भी पूछना चाहता हूं, साइड नहीं मिले तो गर्म होने की जरूरत क्या है। आपके मन में कभी भाव नहीं, रोड कॉमन है, गाड़ी कॉमन है, रास्ता मेरा नहीं है, इनका है, उनको भी जाना ही जाना होगा, साइड नहीं दे, ओके। मांगने का विरोध नहीं है, मगर नहीं दी फिर गर्मी करने का विरोध है। कारण बताओ जो कि आगे चालू। हाँ? તમારા મગજમાં શું બેઠું છે? साइड मांगी એટલે ઘણી વાર તો મને એમ થાય છે, साइड देने वाला नहीं देता है, जिसको देना है वो नहीं देता है। तब तुम गाली बोलते हो ना, वो वहां तक तो पहुंचती भी नहीं ना, तो किसको सुनाते हो। अपने आप को सुना तो वहां तक भी ठीक था, वो 5-10 साल के बाद आया, उनको गाली सुनने को मिलता है। અને આમ સાચું કહું, હું 54 વર્ષથી પ્રવચન કરું છું, સાઈડ માંગુ છું, તમે આપતા જ નથી, બેઠો શાંતિથી કરી ક્યારે ગરમી સાંભળ્યા પછી કશું ન કરો તો ઘરે બેહી રહો શાંતિથી, બોલ્યો ક્યારે। મને વિશ્વાસ છે રોન વગાડ્યા કરો, ક્યારેક ઠેકાણું પડશે। गुड एंगल मुनि जीवन में गुरु भगवान की ओर से भी तो अन्याय हो सकता है। रिपीट करना चाहता हूं, अन्याय। कपड़े ही बदले हैं, मन तो हम भी तो लेके आए थे। जिस मन को लेकर के संसार ने हमें भटकाने का काम किया, वो मन तो चारित्र जन्म में भी आएगा साथ में। कल भले वो लड़के दीक्षा लेगी, मन तो वो लेके आएगी, मैं भी तो लेके आया, वो तूफान मन का ही है। ये मन को बदलना पड़ेगा। गुड एंगल, नंबर 4 गुड एडवाइस। अटैचमेंट, एटमॉस्फेयर
गुड एंगल, गुड एडवाइस। मे भी पॉसिबल मुनि भगवान को बहुत कुछ दिक्कत दीक्षा के बाद हो सकती है, स्वाध्याय नहीं होता है, तप नहीं होता है, शायद मुझे प्यार थोड़ा कम मिल रहा है, मे भी पॉसिबल हो सकता है सब कुछ। और उसी टाइम किसी भी मुनि भगवान, एक मुनि दूसरे मुनि के पास जाएंगे, गुड एडवाइस। मम्मन सेठ यहां हार गया और नाग केतु यहां जीत गया। नाग केतु के जीव ने किसी को पूछा श्रावक मित्रों के कि मेरी मां मुझे बहुत हैरान कर देती है, क्या करूं मैं? और बता दिया गत जन्म में तप कम किया है, इसके हिसाब से ये दिक्कत है, क्या करूं? अठम मुनिवर ने मोदक पड़ी लाभी, पछी तो करी घनी निंदना रे। सच बोलो, आप दावा के साथ कहना चाहेंगे कि किसी भी कारण से कोई मेरी राय लेने की रहेंगे, गुरुदेव भगवान महावीर ने जो राय देने की बात की वही राय मैं दूंगा। मेरे पिताजी ने अन्याय करके मुझे बंटवारा में धोखा दिया है। जहां कोर्ट में जा पिताजी के सामने समझते क्या आप एडवाइस हो देंगे दोस्त, आखिर पिताजी तेरे भी पाप कर्म का उदय होगा, स्वीकार कर ले। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, जीवन में 3 चीज, अन्याय हो, अपमान हो, अवगणना हो, और वो टाइम यदि आपकी कोई राय लेने की आ जाए, आप 100% राइट गुड एडवाइस देंगे गारंटी के साथ। क्या नहीं, अध्यात्म नहीं, संसार की सलाह, व्यवहारिक सलाह केवी होय, व्यवहारिक सलाह केवी होय, समाधि खंडित है तेवी रिवेंज नो भाव पैदा થાય, रिवेंज देखाड़ी दे यार, आ भाव श्रावक सलाह पे। गीतांजलि में वर्षों पहले आया था, मुकेश भाई नाम का सुश्रावक जिंदगी का पहला प्रवचन सुना, और प्रवचन के बाद में 5-10 मिनट नहीं मिलता हूं, कपड़ा गीला होता है तो वो आए और भाग्य सुन थे, गुरुदेव एक भाई रो रहे, अर्चन मिलना है आपको। मैं बोला तुम्हें मालूम है मैं थका हुआ हूं, 5-10 गुरुदेव रो रहे, अभी आना है। बिना कपड़े बदले उनको मैंने बोला, बोलो क्या है? गुरुदेव 3 करोड़ का पेमेंट मेरे बड़े भाई से बड़ी बदमाशी के साथ आपने रोका है, कोर्ट में केस चल रहा है गुरुदेव। 10-12 साल से गुरुदेव वहां तक पहुंच गए, मरू या मारू। आज पहली बार जिंदगी का प्रवचन सुना गुरुदेव, आपके पास आया हूं, गुरुदेव आशीर्वाद दो, कोर्ट में से केस विड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं। बदमाशी करके 3 करोड़ का पेमेंट 12 साल से रुका है, बदमाशी की गुरुदेव, दिखा दूंगा इनको। आज सुन लिया गुरुदेव। गुरुदेव केस विड्रॉ करना बहुत आसान बात नहीं होती, डिफिकल्ट बात होती है, बरसों से लगा हुआ, मगर आपका आशीर्वाद चाहिए, पेमेंट आ जाए इसके लिए नहीं, रिपीट छोड़ने की हिम्मत पैदा हो जाए इसलिए। बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया। आपका नाम मुकेश, मुकेश भाई जाओ, ये निर्णय आपने जो किया ना वो भगवान महावीर के वचन का निर्णय, 1 मैन इज मेजॉरिटी ऑफ गॉड विथ यू। एक आदमी भी मेजॉरिटी में यदि परमात्मा तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है, रिवेंज मुक्त होना है, जाओ। गुरुदेव 10:05 हुई है, गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, 12 बजे विड्रॉ करके आ जाओ। बोलीवरी की कोर्ट में ही केस था,
12 बजे में 10 मिनट कम थी, वो मुकेश भाई दौड़ते दौड़ते पैर में लेट गए, आंख में आंसू थे। गुरुदेव कमाल हो गई। केस विड्रॉ करके बड़े भाई को मैसेज दे दिया। गुरुदेव बड़े भाई जो रोए हैं, गुरुदेव मुकेश मैंने तुझे बहुत अन्याय किया, ये क्या नहीं, मैं तू आजा घर पे, मैं तुझे नहीं, बस खत्म हो गई बात। केस विड्रॉ इसलिए नहीं कि आप 3 करोड़ वापिस दे दो, बस खत्म। गुरुदेव ने बता दिया बात पूरी कर दो गुरुदेव, बस इतना अंधा है। बड़े भाई ने आमंत्रण दिया, मुकेश एक बार तू घर पे आजा, मिठाई सब साथ में खाएंगे। आता हूं। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट हैपेंड। 3 करोड़ का पेमेंट छोड़ने के बाद, इतना आनंद महसूस करने के बाद, वो मुकेश भाई 1 साल के बाद पालीताना गए, और पालीताना गए हिंगड़ाजना हड़ागढ़ एटेक है, वो जीवन समाप्त थी। मौत पहला एंट्री खत्म કરીને નીકળી જો, नहीं तो डूचा निकली છે ભવાંતર में। महाराज साहब तो बोलिया करे, તમારે બોલવું છે, महाराज साहब बोलिया करे। खाली एम ज बोलो वेर मज्जन कि नहीं। जो मैं प्रवचन करके आया अभी, चालू प्रवचन में एक बात मैंने रखा, 5 साल से तुम्हारा पेमेंट जान रुका है। रिपीट, 5 साल से पेमेंट रुका है। तुमने उनको फोन कर दिया, गाली गलौज कर दिया, माँ बहन के बारे तुम्हें गाली दी, साला आराम कर देता है कि नहीं देता है। 5 साल तक ये गाली गलौज करने के बाद भी यदि तुम्हारा पेमेंट नहीं आया, अब फोन कर दो। पेमेंट छोड़ता वो नहीं, अब पेमेंट के लिए फोन सामने से नहीं करूंगा, आएगा तो ले लूंगा। હું શું કહેવા માંગુ ખબર છે, 5 સાલમાં પાપ પુણ્યનો ઉદય જાગ્યો નહીં અને પાપ ચિકાર બાંધ્યા। ગાળા ગાળી, મારા મારી, મા બેન સુધી ગાળો, મર્ડર કરીશ, ખૂન કરીશ, આવા બધા શબ્દો પૈસા માટે તમે બોલો છો। 5 साल के बाद यदि ये तुम्हारा मामला निपटा नहीं, ये बहुत हो गया। अब एक बार जाकर के बोल दो कि दोस्त आज से कभी फोन पैसे के लिए नहीं करूंगा, तेरा आ जाएगा तो ले लूंगा। प्रवचन की समाप्ति के बाद मैं मकान में आया, जलाराम हॉल से अपने स्थान पे 10 मिनट का रास्ता था, आया, कपड़ा बदला। 34 साल का ये लड़का मेरे पास आया, गुरुदेव आज अद्भुत था, मेरे जीवन के लिए आपने एक अच्छा एक रास्ता दिखा दिया गुरुदेव। और मैं बोलूं इनके पहले सत्यन मेरे सामने आपने फोन कर दिया और मुझे सुनाई पड़े से बोला, दोस्त 5 साल से सब कुछ किया, फिर भी 6 करोड़ का पेमेंट मेरा रुका है। आज से जिंदगी में कभी फोन नहीं करूंगा, जब भी मन हो 6 करोड़ दे देना, आज से बात खत्म। 6 करोड़। मौत साथे पैसा रही जवाना અને પૈસા ખાતર કરેલા પાપ મોત પછી સાથે આવવાના। અને આવી વાત અમારા જેવા કરે એટલે બહાર નીકળીને તમે કોમેન્ટ કરો, મારા સાહેબ જે આવું ન બોલે બીજું હું બોલે, એમને ધંધો શું છે। हाँ मे भी पॉसिबल, आप ये कर सकते हो कमेंट, कोई विरोध नहीं है मुझे। हमारे में एक शब्द लिखा है, तुम्हें लिखना है तो लिख देना, कल्याण मित्र अयोग्य बीजा थानादि असंभवात। जिस श्रावक के पास कल्याण मित्र नहीं, उसको सम्यक दर्शन पाना इम्पॉसिबल है। कल्याण मित्र, शायद बोलो आपके पास कितने कल्याण मित्र हैं। कल्याण मित्र अयोग्य बीजा थानादि असंभवात, असंभव नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कल से चारित्र के मार्ग में जाने वाली इस बहन को, ये हम सबको ये मिला है। सहन शक्ति मिली ड्यू टू अटैचमेंट, साधना की ताकत मिली ड्यू टू एटमॉस्फियर, समाधि की ताकत मिली ड्यू टू एंगल,
और सद्गुण के क्षेत्र में आगे जाने का मन होता है ड्यू टू एडवाइस। और 5वें नंबर की सबसे बड़ी ताकत एप्रिसिएशन। क्या एप्रिसिएशन माने क्या? हाँ, बोलो बोलो जल्दी। ओके सर, बोलो आपके परिवार में आपके बेटे की बेटी की को अच्छा करे करे बहुत अनुमोदना करते हो। प्रवचन को विराम देने के पहले एक बात करता हूँ। सूरत का एक लड़का जिनका नाम था अक्षय, इतना छोटा था, बहुत छोटा, मम्मी पापा के साथ मेरे पास आया और पापा ने बता दिया गुरुदेव कल अक्षय ने रात्रि भोजन नहीं किया। मैंने बोला तुमने क्या किया? वो समझ में नहीं रहा क्या करना चाहिए गुरुदेव। मैंने 10 रुपया दे दो मेरे सामने। ये बात करता हूँ 2000 के साल की, हाँ 99। पिताजी ने 10 रुपया दिया। देखो क्या चमत्कार क्या होता है, 10 रुपया करोड़पति बाप था। 10 रुपया पाने के बाद लड़के ने बोला पापा कल भी रात्रि भोजन नहीं करूंगा तो 10 रुपया फिर देंगे क्या? क्या हुआ? ये एप्रिसिएशन शब्द से नहीं, 10 दिया। और रोज वो लड़का मुझे बता गुरुदेव आज पण 10 मिला, काले रात्रि भोजन नहीं करू, आज पण 10 मिला, रोज चालू हो गया। और एक दिवस पिताजी मैंने आज 10 ना मिला। मैं केम साहब काले लगन में गयो तो ने आइसक्रीम જોઈને ખાવાનું બહુ મન થઈ ગયું એટલે 10 गया। होता है, छोटा बेटा है। मगर बात मैं अभी करना चाहता हूँ, रोज का 10 होते चला वो लड़का भक्ति योगाचार्य पूज्यपाल आचार्य भगवान यशोष्मा की पावन निश्रा में ओली थी भीलड़िया जी में। और अक्षय मिलने के लिए आया। मैंने पूछा अक्षय वो कैसा रहा रात्रि भोजन? त्या गुरुदेव अच्छे से चलता है, पिताजी रोज का 10 देते। और अभी देखो नाना बालक ने છે ને ગલ્લો છે ને ગલ્લો, હા એ છે ને એને બહુ મોટો લાગે અને તમને એફડી પણ સાલી નાની જ લાગે। खबर नहीं તમારું ગણિત શું છે। हाँ, और वो छोटे बेटे ने मुझे बता दिया महाराज साहब इतना रुपया आ गया, इतना रुपया आ गया। वो बात करता था ना जैसे धीरूभाई अंबानी बन गया। सुनो तो अभी सुनो, तुम एप्रिसिएशन क्या कर सकता है। गुरुदेव गल्लो एटलो भराई गयो, एटलो भराई गयो, आटला बधा पैसा दी गया, आटला बधा पैसा दी गया। लड़के के साथ लड़के की भाषा में बात करनी चाहिए। मैं बोला अक्षय इतना रुपया होने के बाद तू करेगा क्या? आपके जाने के बाद गुरुदेव 10-10 रुपया पैसा पापा ने देते चले, इतना रुपया हो गया गुरुदेव। आज जब मैंने पूछा मेरी आंख में उसने आंसू निकाल दिए। आप पूछते गुरुदेव क्या करूंगा? ये भिलड़िया का शिखरबंदी मंदिर है, ऐसा शिखरबंदी मंदिर मेरे गले से बनाऊंगा। अन्यमा पण दया दिक्क गुणों जे जिन वचन अनुसार तास अनुमोदना कीजिए समकित बीज निर्धार। તમને કદાચ ખબર નહીં તો યાદ કરાવું પછી કરું પ્રવચન બંધ। સુકૃતની અનુમોદના ન કરે, હાથે કરીને ન કરે એ સમકિત ગુમાવે। નાણમની સૂત્ર આવડતું હોય અહીં આંગળી ઊંચી કરો થોડા। सम्यक दर्शनना 8 आचाરની વાત છે ને, નિસંકીય, નિકંકીય, નિવિદિકીચા, અમૂઢદિત્ય, પછી શું આવે? ઉપબુહ એટલે અર્થ શું? ઉપબૃહણા, સ્થિરીકરણ અને વાત્સલ્ય આ પણ સમ્યક દર્શનના આચાર છે। ભગવાન તમારા બચ્ચન ઉપર શંકા કરું એ તો સંકિત ગુમાવવું, પણ જીન શાસનમાં કોઈ સત્કાર્ય કર્યા વિના અનુમોદના કર્યા વિના મંગોરવને તોય સંકિત ગુમાવી શકું છું। क्या है विदाय समानम? क्या है दीक्षार्थी का विदाय समानम की एप्रिसिएशन से। आप चारित्र के मार्ग पे जाते सकल सी संग अनुमोदना करते हैं।
हर मुनि भगवान मुनि जीवन में टिक सकता है ड्यू टू 5 अटैचमेंट, एटमॉस्फेयर, एंगल, एडवाइस एंड एप्रिसिएशन। आज मैं यहां तक पहुंचा तो गुरुदेव ने पांचों पांच चीज जम के लिए, जम के, और वही ताकत को लेकर के कल एक आत्मा पवित्र जीवन में प्रवेश करेगा। मालूम मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने एक दीक्षा देखी, साध्वी का नाम नहीं बताना चाहता हूं, मगर वो दीक्षा बारडोली में थी। दीपक बारडोली वाला ने एक व्यवस्था की थी, 18 कौम के धर्म गुरु को दीक्षा के लिए बुलाया था। मुस्लिम परिवार से धर्म गुरु थे जिनका नाम था हारून भाई। मेरी निसरा में दीक्षा हुई। दीक्षा हुई, राजन का दान दिया, और वो लड़की स्नान करने के लिए जाने के पहले दीपक ने दिया कि आपके शरीर में जो गहने हैं वो अपने माता पिता को समर्पित कर देगी। खचोखच भरा हुआ पंडाल, और लड़की गहने उतारते चली, पिता और माँ ये साड़ी के पल्लू को लेके, और हारून भाई को मैंने दूर से देखा, खड़े हो गए, रोते रोते निकल गए। 50 दीक्षा में एक भी दीक्षा तुमने ऐसी देखी हो तो मुझे बता देना। चालू प्रवचन में, चालू दीक्षा मंडप में मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, इसलिए हारून भाई को जाने दिया। 1 बजे दीक्षा खत्म होने के बाद मैंने दीपक और इनके पिताजी मनोज भाई को, मनोज भाई एक बार हारून भाई को मिल तो लो, कहीं गलत फहमी तो नहीं हुई है। और दीपक और मनोज भाई मिलने के लिए हारून भाई अपने पूरी दीक्षा देखी नहीं। अब चालू दीक्षा में निकल के समझ में नहीं आया, कुछ हमसे अपराध हो गया, गलतफहमी हो गई जैन शासन के मेरे ओर से। दीपक क्या बात करता है। मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा पहला प्रसंग देखा, कोई लड़की शादी के बाजार में खड़ी हो जाए तो 50-50 लड़के जिनको 1 मिनट में हाँ बोल दे, ऐसी रूपवती लड़की, और अपने माँ बाप को ये गहना देती थी। मैं हैरान था, तब बाजू वाले ने बता दिया ये लड़की तो अभी जा रही है स्नान करने के लिए, व्हाइट ड्रेस में आएगी और मस्तक पे केश नहीं रहेगा। दीपक, मुझे लगा वो लड़की का वो रूप यदि मैं देख लिया तो शायद मुझे अटैक आ सकता था। मेरे बस की बातें नहीं दीपक, ये देखना मेरे बस की बातें नहीं। मैं निकल गया चालू दीक्षा में, और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके मुंह से क्या शब्द था। दीपक, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, लड़की को मैंने पहली बार देखा, मगर लगता है इस लड़की को खुदा नहीं मिलेगा, फिर किसको खुदा मिलेगा। कल दीक्षा देखनी है तो इस हृदय से देखना। विधि विधि के ढंग से चलेगी, उपयोग उपयोग के ढंग से चलेगा। हो भाव तुम्हें क्रिएट करना है। ऐसी दीक्षा देख के आया, अद्भुत माहौल है। कितने नसीबदार है गोरेगांव श्री संघ। इतनी इतनी दीक्षा देखने का सद्भाग्य आपको मिला, देखते रहना। पांच पेटी के बाद 7 पेटी के बाद जो भी है, मगर ये अपने घर में चारित्र के मार्ग पे जाने वाले कोई निकलते हैं। आज प्रभु वीर का भी दीक्षा कल्याण है। आसन्न उपकारी चरम तीर्थाधिपति आज जो चारित्र के मार्ग पे निकले,
12.5 साल में भगवान ने क्या कर्म निर्जरा की, किस रास्ते से की, वो बात इस 5 में कहीं ना कहीं आ गई। इंद्र कहे प्रभु वीर ने મને એક વિનંતી કરવા દો, पंथ कठिन છે साधना केरो पास તમારી રહેવા દો। घोर भयंकर जंगल वसता क्रूर हिंसक प्राणी, कोई न पूछे भाव તમારો नहीं મળે अन्न के पानी, તે માટે વિનવું છું તમને સાથ તમારી રહેવા દો, पंथ कठिन છે साधना केरो पास તમારી રહેવા दो। ज्ञान थकी हूँ જોઈ રહ્યો છું ભાવી માર્ગ તમારો, આવશે આંધી તોફાન ઘણા ઉપસર્ગોને ઝંઝાવા દો, તે માટે વિનવું છું તમને સાથ તમારી રહેવા દો, पंथ कठिन છે साधना केरो पास તમારી રહેવા દો। वीर कहे છે इंद्र ने समझू છું भाव તમારો, मेरे प्रति तुम्हारा प्यार आई नो। वीर कहे છે इंद्र ने समझू છું भाव તમારો, एक ज चित्ते સાંભળજો તમે એ છે ઉત્તર મારો। એકલો આવ્યો આતમ પંખી એકલો ઉડી જશે, કાં તો મુક્તિ પામશે કાં તો બંધનમાં મુકાશે, તેથી કહું છું ઇન્દ્રરાજ એ સહાય કરવી રહેવા દો, સંકટ ઉપસર્ગો જે આવે તે હસ્તે મુખડે સેવા દો। આ પ્રભુનો માર્ગ અને એવા મંગળ માર્ગ ઉપર કાલે એક દીકરી પ્રભુ શાસનની શ્રાવિકા એ પવિત્ર એવા સાધ્વીજી સંઘમાં પ્રવેશ કરશે। લેનાર ધન્યવાદને પાત્ર છે, આપનાર ધન્યવાદને પાત્ર છે, જોવા મળે બધાને પણ ધન્યવાદ છે। આવો મંગળકારી પ્રસંગ ગોરેગામના આંગણે આવ્યો છે। મારી જાતને હું ધન્ય માનું છું। આવા પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેવાનું સદભાગ્ય મળે છે। ક્યારેક ક્યારેક મન થાય કોઈ મુનિના ઇન્ટરવ્યુ લેજો, ક્યારેક બધા પ્રભાવક નથી હોતા। ફરીવાર યાદ રાખજો, બધા મુનિ પ્રભાવક નહીં મળે પણ એક પણ મુનિ પ્રસન્ન ન હોય એવું તમને નહીં મળે। પ્રભાવકતા અમારે માટે કમ્પલસરી નથી, પ્રસન્નતા મસ્ટ। મન પ્રસन्न તામેતી પૂજ્યમાને જીરેશ્વરે। और जैसे जैसे दीक्षा प्रिय बढ़ता है ऐसे ऐसे हमारे में एक ही शब्द लिखा है, तेजो ऋषा विवृद्धि। या साधु का दीक्षा जीवन बढ़ते रहेगा, इनकी शुद्धि और प्रसन्नता बढ़ती रहेगी। मेरा भाई है पद्म सुंदर, 51 साल का दीक्षा जीवन में प्रवेश आज इनका भी। तो जन्म क्या रे? हाँ, जन्म दिवस है 4 નવેમ્બર, તારો 20 જુલાઈ 4 નવેમ્બર। તમારી આ વાત જાણીને મને કમાલ આશ્ચર્ય થાય, તમને કોઈ તિથિ યાદ જ નથી? હવે બોલ્યા ને તમે કેમ તારીખ કેમ યાદ રાખીને બેટા? કઈ આમ કઈ જરાય મગજમાં આવે જ નહીં કઈ? વાત પૂરી કરતા પહેલા તમને જે સમજાવી દઉં, 20 તીર્થંકર 24 તીર્થંકર એકના કેટલા કલ્યાણ? 5, બધું મળીને કેટલા? 120। ક્યારેક ક્યારેક તમારી તિથિ પ્રમાણે જન્મ મળે તો પંચાંગ તમે જુઓ, અને તમને ક્યારેક તમારી કોઈક તિથિ એવી મળે જેમાં પાર્શનાથ ભગવાનનું જન્મ કલ્યાણ હોય, ક્યાં ભીલડિયાજીના મૂળનાય ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા હોય, ક્યાંક પાલિતાણાના દિરાસરની સાલગીરી હોય, અને તમને લાગે મારા જ જન્મ દિવસે વૈશાખ વચ્છટ પરમાત્મા ઋષભદેવની દાદા કમાલ, એ દિવસે તમે અંગરચના પણ કરાવી શકો, પ્રભુની ભક્તિ પણ કરી શકો, અને વિનંતી કરી શકો, પ્રભુ આપના મંગળ દિવસે મારો જન્મદિવસ, મારું પણ તારીખમાં શું મળે તમને?
एनी रीजन? आप मुझे बता पाएंगे तिथि केम तमे याद केम न राखी? હે શું હે? અંગ્રેજો શીખવાડી ગયા એમ? ઓહો, તમે એટલા બધા ગ્રાહક છો બધા એમ? કોઈ શીખવાડી દે લઈ લો એમ? શેના ગપ્પા મારો છો તમે? અંગ્રેજો શીખવાડી ગયા હે? એટલે અમે કઈ તમને શીખવાડ્યું જ નથી. આજે એક કામ કરો, આજે અને આ તો તમને કહું, તમારા ઘરમાં સુશ્રાવિકા હોય ને અને મગની દાળ ને મેથી પાપડ બનાવે ને ત્યારે તમને લાગે આજે હળવું કાંઈક તિથિ જેવું લાગે છે. એમ રાઈટ? હા, બાકી જો આ મગની દાળ મેથી પાપડ નો તમને કાંઈ ખબર પડે એવું નથી. આ દરિદ્રતા અમારું આખું જીવન તિથિની આરાધના ઉપર છે. આયુષ્યનો બંધ તિથિ ઉપર પડે. ક્યારેક તમે આમ પંચાંગ લઈને જુઓ, તમારી તિથિ સાથે કોઈ કલ્યાણક મળે, કોઈ તીર્થની ધજા મળે, કોઈ મલ્લીનાથ ભગવાન મળે, કંઈક મળે 120 આના બધા કોઈ મહાપુરુષની તિથિ મળે અને તમે પ્રાર્થના કરો, પ્રભુ આ તાકાત મને મળે, ક્યાંક તમારું પુણ્ય પણ વધે. કાર્તવ્ય દસમે દીક્ષા દિવસ એટલે પોતાની દીક્ષા યાદ ના આવે. પ્રભુ વીર ચારિત્રના માર્ગે આ દિવસે નીકળ્યા હતા, મારે આવું જ પરાક્રમ કરવું જોઈએ. આમાં છે ને આપણો જન્મદિવસ કે આપણે નક્કી નથી કર્યો હતો, એક્સિડન્ટલી થઈ ગયો હોય, પણ એમાં આપણું કોઈ પુણ્ય હોય એવું ખરું. પણ એટેચમેન્ટ, હું મારી રીતે પ્રાઉડ છે, મને અભિમાન નથી, આનંદ ચોક્કસ છે. મારો જન્મદિવસ પાર્થનાથ ભગવાનના જન્મ કલ્યાણકના દિવસે છે. આનંદ છે. પાર્થનાથ ભગવાનના ગુણ હોય એ તો પ્રશ્ન નથી આવતો, પણ યાદ આવે પાગલ બની જાય. પ્રભુ આપ ધાર્યા એ દિવસ મને મળ્યો, આપની ઉપાસના આરાધના કરી, આપના જેમને આંખ સામે રાખી કલંક ન લાગે એની મહેનત કરીશ. આવો એક અદ્ભુત નજારો કોરેગામ શ્રી સંઘના આંગણે. ખાલી હોમવર્કમાં ખાલી 5 નામ આપી દેશો. નંબર 1, બાકીના બધાને કાનપુરમાં હડતાલ હતી. 5 મને ઘણી વાર થાય, તમારા ઘર સુધી જો પ્રવચન નથી જતું તો આડું જીવનમાં ક્યાંથી આવશે? નંબર 1 થોડું જોરથી, નંબર 2, નંબર 3, નંબર 4 એ જોઈને બોલ નહીં તું આ, અને નંબર 5 એપ્રિશિએટ. બસ પરમાત્માની કૃપાથી અદ્ભુત પ્રસંગ છે. દિલથી માણજો, જોજો, હૃદયને ભાવિત કરજો અને એટેચમેન્ટ કેવી રીતે મેન્ટેન થાય. સન શક્તિ એનું એક પુસ્તક બહાર પડ્યું હતું, રિલેશન એરલાઇન્સ. ચાહે પતિ પત્ની, બાપ દીકરો, સાસુ બહુ, દેરાણી જેઠાણી, પિતા પુત્ર, કઈ રીતે મેન્ટેન કરી શકાય આ વાત આ પુસ્તકમાં છે. 200 રૂપિયાનું પુસ્તક. ખાલી આજે આ દીક્ષાની અનુમોદના નિમિત્તક એક ભાગ્યશાળાથી માત્ર અને માત્ર 10 રૂપિયામાં બહારથી ઉપલબ્ધ છે. અનુકૂળતા હોય, વાડી મળે ને એટલે લગ્ન નક્કી ન કરાય. ખ્યાલ આવે? શું થાય? લગ્ન નક્કી થાય તો વાડી હોય, પણ વાડી મળે એટલે લગ્ન બુક ન થાય. એટલે 10 રૂપિયામાં મળે માટે લઈ ન લેવાય. વાંચવું હોય તો જ લેજો. પચકાળ ઉપવાસ સરે એ બધી દરબારી જાગણમ પાણાર બધું જાગણ વસરે આય મિલિકા જાગણમ આય જાગરણ ઠાણેનમ પારિઠાવણી જાગણ વસરે સારો મંગલ મંગલ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ.
સાહેબનો 500મું પુસ્તક એના માટેનો ઉર્જા મહોત્સવ મુલુંડ મુકામે યોજાયેલ છે. 11મી જાન્યુઆરીમાં દિવસે 500મા પુસ્તકનું વિમોચન ઉર્જા મહોત્સવ અન્વયે મુલુંડ મુકામે થશે. દરેકને ત્યાં આગળ મહોત્સવમાં 5 દિવસના મહોત્સવમાં પધારવા માટે નમ્ર વિનંતી છે. બેઠું વર્ષીદાન એની વ્યવસ્થા અહીંયા આગળ દરેકને સિંગલ લાઇનમાં ભાઈઓ અને બહેનોને ગોઠવવા માટે વિનંતી છે.